نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب ہمارا انشاءاللہ جو ہے آج ہمارا لاسٹ جو دو ہمارے اشرا مبشرہ جو رہ گئے تھے نا ہمارے، انشاءاللہ ہم آج ان کو ڈسکس کریں گے. کتنے ہم نے آلریڈی کر لیے؟ ویسے تو میں نے بڑا سلی کوشچن ہے لیکن پھر بھی پوچھتی ہوں، کتنے کر لیے؟ I think it's 8. اوکے، جب 10 میں سے 2 رہ گئے تو 8 کر لیے، ٹھیک ہے نا؟ isn't it؟ ہم جو ہے انشاءاللہ 2 کریں گے. کسی کو پتا ہے کہ کون سے 2 رہ گئے؟ ماہین اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز. اوکے پلیز، جس کے بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کس کے ہم نے کون سے آج کون سے ڈسکس کرنے والے ہیں آج ہم؟ زید. No, وہ تو کر لیا. We haven't done any زید. Haven't we? Oh. پتہ نہیں میں نے کون سا زید کیا. آج ہمارے رہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح اور زید بن سعید. I would say it's unfortunate that we don't know. I don't think we even know these names. ہم وہ لوگ adopted son نہیں تھے؟ Sorry? پہلے بھیجے تھے نا وہ Was he not دیکھے ہی the نہیں مجھے. adopted son of our prophet? Gulshan, say it again, please. You know Zayd, I thought that was the adopted son That was of our Zaid bin prophet. Harisa. That was a different one. Oh, that's what I was thinking. This is Zaid bin Sa'id, okay? اچھا. جیسے ہمارے مریم خان، مریم کیٹرر، مریم عمر، تو ادھر بہت سارے زید بہت ہیں آپ کو، مطلب آپ کو سیرہ میں تین ایک زید بن ثابت ہیں، زید بن حارثہ ہیں، پھر یہ زید بن سعید ہیں، and there is another one as well. So گرامر میں وہ گرامر میں. اچھا، اب ہم جو ہے انشاءاللہ آج ہم ابو عبیدہ بن جراح اور زید بن سعید کی بات کریں گے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کسی کو بھی شاید ان دونوں صحابہ کے بارے میں کچھ زیادہ پتا ہے، اور ٹو بی آنیسٹ وی ریئلی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیم ایون فرام دا ہسٹری. جو ہمیں تھوڑا بہت پتا ہے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کو پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ دے آر فرام دا 10 promised ones. 10 promised ones کیا پرومس کیا گیا تھا ان کو؟ جنت. ان کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے. ان کی جو امپورٹنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ they were given this glad tidings in one sitting. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے. And that is why they are very popular as 10 جو تھا نا یہ 10 جن کو ٹائڈنگز دی گئی تھی، glad tidings دی گئی تھی، 10 chosen ones بھی ان کو کہا جاتا ہے. اچھا، اب جو اس میں جو نمبر 8 پہ ہم سب سے نمبر 9 پہ پہلے ابو عبیدہ بن جراح کی بات کرتے ہیں. تو ابو عبیدہ جو تھے یہ ہم کو پتا ہے کہ جتنے بھی تھے all these were from Quraysh. So this Abu Ubaidah was also from Quraysh. اچھا، ان کا جو تھا ان کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 ایئرز جو تھے وہ ینگر تھے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ہی فیو جو بالکل شروع کے جو تھے نا اس کانورٹس میں سے تھے، بالکل بگننگ میں ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. اور ان کا بھی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہی ان کو یہ جو ہے ایسے ان کو پتہ چلا تھا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے بیعت لی تھی اور جو ہے اسلام قبول کیا تھا. اچھا، ان کا جو کہتے ہیں کہ یہ جب ہی واز اے ویری ویری اسکلڈ آرچر. تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ 4 ایئرس کے تھے تو ان کے جو فادر جو تھے ان کو 2 بہت زیادہ ہیوی جو تھی آبجیکٹس دے کے ان کو جو اسکواٹس کروایا کرتے تھے ایٹ دا ایج آف 4. اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کو پریکٹس کرواتے تھے ایرو شوٹ کرنے کی. کہتے ہیں کہ جب وہ 7 to 8 years تھے تو he was able to shoot a target while he was riding. So اور پھر at the age of 10 he was able to shoot a target while the target was moving and he was moving as well. اور ان کا ٹارگٹ اتنا اسٹریٹ ہوتا تھا کہ وہ سینٹر میں جاتا تھا اور جو آبجیکٹ ہوتا تھا اس کو 2 پیسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتا تھا. So he was an expert of his field.
अब हमको ये पता चलता है कि अब ज़ाहिर है जब फादर ने उनको इतना ऐसा ट्रेन किया, उनकी ऐसी ट्रेनिंग की, तो फादर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन जब अबू उबैदा ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनके जो फादर थे ही वांटेड टू किल हिम बिकॉज ही डिडंट अप्रूव के ये जो है इन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा की ये जो स्किल्स थी इनको बहुत ज़्यादा, जितनी भी बैटल्स हुई, जितनी भी जो भी इवेंट्स होते थे, वो ऐसी सारी बैटल्स जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं शामिल होते थे और दूसरों को भेजते थे, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा उनको यूज़ किया, उनकी टू द मोस्ट उनका जो टैलेंट था, उनकी जो एबिलिटी थी, स्किल थी, उसको यूज़ किया। जंग बदर में ही पार्टिसिपेटेड और जो है कुरैश की तरफ से हिज फादर वाज आल्सो देयर। सो ऑब्वियसली आप कितना भी कह दो लेकिन बाप बाप ही होता है, तो ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो अपने फादर के सामने ना आए। ही वाज ट्राइंग कि मैं दूसरी तरफ रहूं, मुझे अपने बाप के सामने ना आना पड़े, बट फादर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो बार ही वाज चेजिंग हिम, ही वाज फॉलोइंग हिम। सो ऐसा हो गया कि वो दोनों सामने आ गए और जो अबू उबैदा थे उन्होंने अपने वालिद को जो है कत्ल कर दिया था जंग बदर में। तो इनके लिए फिर जो है सूरह मुजादला में जो है एक आयत नाजिल हुई थी, जब इस जंग के बाद एक आयत नाजिल हुई थी जिसका जो मीनिंग है वो यही है कि वो लोग जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इसका मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इनको तुम ऐसा नहीं पाओगे कि वो उनसे दोस्ती रखते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, चाहे वो उनके बाप हों। तो अबू उबैदा को जब ये आयत नाजिल हो गई थी तो उनको एक बहुत ही पीस सा मिल गया था। ज़ाहिर इंसान एक स्ट्रेस्ड, वो कितना भी आप ये एक इंसान के ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा काम डाउन हो गए थे कि उनके लिए जो है ये आयत नाजिल हुई थी। फिर उनका जो है अबू उबैदा को बहुत ज़्यादा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका एक बड़ा हायर रैंक था। उनका रैंक जो था वो एक्चुअली हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के साथ का ही था। वो हर जगह उनकी चाहे जितनी भी जो काउंसल्स होती थी, शुरा काउंसल्स होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एडवाइस देते थे तो ये ज़रूर शामिल होते थे। फिर जो है और इनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था अल अमीन का, अल अमीन हाज़िहिल उम्मा उनको कहा था। और ये जो था हज़रत अबू उबैदा के लिए बहुत ही बड़ा ऑनर था, क्योंकि अल अमीन उससे पहले किसका टाइटल था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद का टाइटल था। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुद का टाइटल था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा को वो टाइटल दे दिया। तो अबू उबैदा जो थे वो बहुत ज्यादा जो है इस चीज के लिए, मतलब उनको, और जो हजरत उमर के लिए आता है कि जब ये टाइटल उनको दिया गया था और वो किसी इंसिडेंट के बाद हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं आज उस आदमी को तुम्हारे कुछ क्रिश्चियंस थे जो वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है कोई ऐसा आदमी, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, हमारे कुछ इश्यूज हो गए आपस में जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट कर दें जो कि हमारे लिए उन इश्यूज को सॉल्व करवा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं असर की नमाज के बाद जो है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे लिए अपॉइंट करूंगा जो कि तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और वो अल अमीन है। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये तो मैं ही होऊंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि जब नेक्स्ट नमाज में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ में खड़ा था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सलाम फेरा तो आई वाज जस्ट रेडी कि बस आई एम द वन। और फिर वसल्लम ने बोला कि अबू उबैदा किधर है, तो फिर मुझे हुआ, मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा रश किया अबू उबैदा के ऊपर कि ही वाज चोजन एज एन अल अमीन। तो जो है और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो और भी जितने भी बैटल्स थे उसमें वो उनके साथ शामिल रहे थे। ओहद के मौके पे, ओहद की जब बैटल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पता है कि दो जो आपके जो उसमें चीक्स में जो उनका जो हेलमेट टाइप की जो चीज थी उसके दो चेन्स मुंह में उनके चीक्स में चले गए थे। उनका एक दांत भी डैमेज हुआ था और वो चले गए थे। तो जब जंग खत्म हो गई तो अबू उबैदा ने आगे जाकर अपने दांतों से उन जो 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 चीक में जो चेन्स चली गई थी उनको निकाला था, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेन नहीं हो, और अब सारा पेन जो है ना खुद लेने की, प्रेशर लेने की कोशिश में उनके अपने आगे के दो दांत टूट गए।
और वो इतने प्राउडली वो बहुत प्राउड थे इस बात पे कि मैंने जो ये 2 दांत जो खोए हैं ये इस मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ से निकालने के लिए जो है मैंने ये 2 दांत खोए हैं। तो पूरी जिंदगी जो था वो उनके फिर ये पूरे 2 दांत नहीं थे और उसकी वजह से उनकी स्पीच जो थी वो थोड़ी सी इफेक्ट हुई थी। जरा आपकी जब आगे के 2 दांत नहीं होते तो आप थोड़ा सा बात करने में आपका थोड़ा इफेक्ट होता है, स्पीच थोड़ी सी इफेक्ट हो गई थी। फिर ये कि आपने अपनी जिंदगी में भी एक बैटल हुई थी जिसमें आपने उनको भेजा था जिसका नाम कहते हैं सैफुल बहर, जिसको सरिया सैफुल बहर कहते हैं। उसमें ये हुआ था कि जो है अबू उबैदा जो है वो लीड कर रहे थे, कमांडर थे और उस जंग में जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत ही मुश्किल हालात आए थे। ऐसा वक्त आ गया था कि कुछ उनके पास खाने को नहीं था और वो लोग जो है ना लीव्स खाने पे मजबूर हो गए थे। तो वो वहां पे उन्होंने लीव्स खाकर अपना जो है टाइम स्पेंड किया था, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर जब वो लोग वहां से निकले थे तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ी वेल मिली थी, एक डेड वेल जो थी उनको मिली थी। तो उन्होंने जो है उस वक्त उनको पता नहीं था कि फिश, ज़ाहिर है आप देखें अरब की जहाँ पे अरब्स थे वहां पे कोई सी तो था नहीं कि उनको फिश से बहुत फेमिलियर हो या उनको पता हो। तो उन्होंने उस एनिमल का मीट जो है वो जो वेल थी उसका मीट खा तो लिया था उन लोगों ने, और वो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने खाया, एंजॉय किया था बाकायदा उस मीट को। और उसके बाद जब वो वापस आए थे क्योंकि वो श्योर नहीं थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये सही था, हमने खा तो लिया लेकिन क्या ये सही था कि हमने किसी एनिमल जो था उसको खा लिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक था और उसी से जो हमको जो हमें जो मिलता है ना कि हम लोग अलाउड हैं सी फूड खाने के लिए, तो आपको इसी से मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसमें से कुछ मीट बाकी है? तो एक सहाबी ने कहा हाँ मेरे पास थोड़ा सा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उसको खाया था और दैट वाज ओनली वन ओकेजन व्हेन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राइड सी फूड, इसलिए कि कोई ऐसी और जो ऑप्शंस थे नहीं कि वो ट्राई करते। तो दैट्स व्हेन द सी फूड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मुस्लिम्स के इस तरीके से उनको फिर पता चला था कि वो खा सकते हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास्ट अवे तो उस वक्त हमें पता है कि एक फौरन ही अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था और एक फौरन फितना उठा था खिलाफत का। और जो अंसार थे उन्होंने अपने तौर पे एक मीटिंग करके अपना खलीफा जो है चूज कर लिया था कि अब हम क्योंकि मदीने में हैं तो मदीने में अंसार का खलीफा होगा। और फिर उसी वक्त अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वहां पे पहुंचे थे। तो उनके साथ उस वक्त अबू उबैदा भी शामिल थे। तो यानी ये कि ही वाज इन द हाई जो रैंक सहाबा थे उसमें मौजूद थे। तो ये 3 लोग जो है वहां पर गए थे अंसार के पास। और जब हज़रत अबू बकर ने अंसार के साथ पूरा जो डायलॉग किया था कि जो है ये सही नहीं होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही था कि जो है जो अगला खलीफा होगा वो कुरैश में से ही होगा वरना एक फितना क्रिएट हो जाएगा, इसलिए कि अरब जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल उसमें बिलीव करते थे। तो उन्होंने कहा कि अरब जो है वो नन कुरैश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं आपके सामने जो है 2 लोगों को वो नॉमिनेट करता हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने जो 2 लोग नॉमिनेट किए थे वो हज़रत अबू उबैदा और हज़रत उमर थे। तो आप देखिए कि उन्होंने इस काबिल समझा था हज़रत उबैदा को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत जो है अबू उबैदा को दी जा सकती है। और फिर जो है हज़रत अबू उबैदा ने और हज़रत उमर ने टर्न होके आप हज़रत अबू बकर के हाथ में बैत कर ली थी कि नहीं आप हम में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। और इस तरीके से जो है वो हज़रत अबू बकर जो की जो है वो खिलाफत हुई थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में जो और उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी जब बैटल्स होती थी जो बहुत ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस कमांडर को दी जाती थी, जैसे हम लोग सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर है ना खालिद बिन वलीद से। तो वो उस ज़माने में खालिद बिन वलीद ज़रा बहुत लेटर ऑन आए हैं इस्लाम में, उससे पहले अबू उबैदा जो थे उन्हीं को बनाया जाता था कमांडर और उनकी जो नो हाउ थी उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता था। उनको इतनी ज़्यादा इतना उनको एक ऐसी एक नॉलेज और टैलेंट था कि जिस साइड से जो है एनिमी जब कहते हैं ना कि वहाँ पे रहते थे, अपने खैमे लगाते थे, अपने टेंट्स वगैरह और अपने एनिमल्स के साथ रहते थे, फिर वहां से चले जाते थे। अबू उबैदा वहां उस साइड पे जाकर इतने एक्सपर्ट थे वो अपनी फील्ड के कि वो ये बता देते थे कि कितने लोग थे यहाँ पे, उनके पास कितने एनिमल्स थे, उनके कौन से एनिमल्स जो थे वो जंग में यूज होने वाले थे, कौन से एनिमल्स सिर्फ वेट से कि जो जमीन पे जो वेट नजर आता था एनिमल्स के फुट स्टेप्स का उससे बताते थे कि कितने एनिमल्स पे उनका सामान था।
तो सारा जो स्टैट्स था वो सिर्फ एक चीज को जगह को देख के बता देते थे। उनका जो एक्सपर्ट लेवल था, एक्सपीरियंस और जो उनका जो एक्सपर्टीज थी वो बहुत ज्यादा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत ज्यादा यूज किया, तो वो एक बहुत ज्यादा माने जाते थे। तो हजरत अबू बकर ने जो है भी जब लोगों को भेजा तो उन्होंने भी अबू उबैदा को बहुत ज्यादा यूज किया। और खालिद बिन वलीद को जब भी जिन चीजों का कमांडर बनाया गया तो हजरत अबू बकर की ये इंस्ट्रक्शंस होते थे कि आप अबू उबैदा को अपने साथ साथ रखेंगे। और खालिद बिन वलीद ने उनको थ्रू आउट जो है अपना एक जिसको कहते हैं राइट हैंड वाला वही हिसाब रखा। कभी भी उनके साथ वो वाला हिसाब नहीं किया था कि वो जो है वो मतलब मैं कमांडर हूँ। फिर जब हजरत उमर का टाइम आया था तो हम सब जानते हैं कि हजरत उमर ने फौरन जो है हजरत खालिद बिन वलीद को रिमूव करके जो है कमांडर इन चीफ जो है हजरत अबू उबैदा को बना दिया था। इस चीज के लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है क्रिएट की जाती हैं कि क्यों हजरत उमर ने ऐसा किया। खालिद बिन वलीद वाज द बेस्ट और देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये है कि हजरत अबू उबैदा की जो निगोशिएटिंग स्किल्स थी ना, खालिद बिन वलीद वाज वेरी लाइक कहते हैं ना कि ही वाज एक उनका थोड़ा सा एक उनका गुस्सा वो बहुत ज्यादा एक जल्दी फैसला करने वालों में थे। और हजरत अबू उबैदा जो थे ही हैड हिज नेगोशिएटिंग स्किल्स। तो वो लोगों से जो है स्पेशली जो नॉन बिलीवर्स होते थे, जो एनिमीज होते थे, वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे उनके साथ मामला जो है वो बातचीत पे कर लेते थे। और उनकी जो ये क्वालिटी थी वो खालिद बिन वलीद में नहीं थी। लेकिन एक चीज है कि जब हजरत अबू उबैदा जब कमांडर बन गए लेकिन उन्होंने फ्रंट पे हमेशा खालिद बिन वलीद को ही रखा। तो हमें नजर आता है इस चीज से कि इनमें से किसी ने इस चीज को वो नहीं बनाया कि ये मेरी पोस्ट है, ये मुझे दिया गया है, ये जो है अब मैं हूं तो अब मेरी ही चलेगी, मेरी बात मानी जाएगी। उन्होंने एक दूसरे के टैलेंट को, एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज थी, एक दूसरे की जो एक्सपीरियंस थी उसको यूज किया। तो फिर जो है हजरत उमर के ज़माने में एक और इंसिडेंट जो इनसे रिलेटेड मिलता है वो ये मिलता है कि जब हजरत उमर ने ये जो अशाम था, अशाम का जो एरिया था हजरत अबू उबैदा की उसमें जब वो कमांडर थे तो वो वहाँ मुसलमान गए थे, मुसलमानों ने कॉन्कर किया था वो। तो हजरत उमर ने उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया था। हजरत उमर जो थे ही वॉज वेल नोन कि वो अपने गवर्नर्स पे बहुत चेक रखा करते थे और उनको जा जाके सरप्राइज विजिट्स किया करते थे। तो वो शाम में जब थे तो हजरत उमर जो है एक मर्तबा उन्होंने हजरत अबू उबैदा से कहा कि आज जो है हम खाना तुम्हारे घर पे खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हजरत अबू उबैदा ने इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं हम कहीं और खा लेते हैं, हम कहीं पे भी खा लेंगे, खाना ही तो खाना है। तो हजरत उमर ने जो है इंसिस्ट किया कि नहीं हम आप ही के घर पर जाके खाएंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने कहा कि आप जो है अपसेट हो जाएंगे। तो उनको समझ में नहीं आई कि वो क्यों किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप अपसेट हो जाएंगे। तो खैर जब वो उनके घर गए तो जब हजरत अबू उमर जो है उनके घर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि उस घर में सिर्फ एक जग था और एक रग था जिसपे जो है मतलब इंसान सो सकता था। तो उन्होंने अबू उबैदा से पूछा कि अबू उबैदा तुम्हारा सामान किधर है? तो उन्होंने कहा बस यही मेरा सामान है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ रोटी के बिल्कुल ड्राई रोटी के कुछ टुकड़े थे उस पर सॉल्ट डाल के और पानी का जग ला के हजरत उमर को जो है वो सर्व कर दिया। और हजरत उमर जो है वो कहते हैं कि वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि अबू उबैदा पूरी हम सबको दुनिया ने चेंज कर दिया, दुनिया हम सब तक पहुंच गई तुम्हारे अलावा। इसलिए कि जब मुसलमानों को बहुत सारी जब मुसलमानों को इतनी विक्ट्रीज मिली थी, उन्होंने इतनी ज्यादा कॉन्क्वेस्ट मिली थी, इतना माल आया था, तो सबके थोड़े थोड़े हालात चेंज हुए थे, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ था। लेकिन अबू उबैदा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और हजरत उमर के लिए भी यही कहा जाता है कि हजरत उमर ने भी अपना लाइफस्टाइल ऐसा ही रखा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था। तो एक ये वाला इंसिडेंट मिलता है हमको हजरत अबू उबैदा की जिंदगी के बारे में कि उन्होंने दीन को जो है फ्रंट पे रखा। हालांकि उनको पोजीशंस मिल गई, उनको चाहे वो कमांडर का भी जो है कोई छोटा स्टेटस नहीं होता, फिर गवर्नर भी एक पोजीशन होती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। फिर एक और इंसिडेंट ये हुआ था कि जब हजरत मैं एक मिनट में जो हूँ ना मैं Rahim, can you mute everybody, कर देती please? हूँ Thank you. मिनट।
ओके, अब एवरीबॉडी इज म्यूटेड नाउ. ओके, सो एक अमवास का एक प्लेग आया था उस जमाने में, जहाँ पे हजरत अबू शाम में, जहाँ पे हजरत अबू उबैदा जो थे वो गवर्नर थे. तो वहाँ पे उस वक्त बहुत लोग जो हैं, जैसे अब हम इस वक्त हम भी एक जो है इस चीज़ से बड़े फेमिलियर हैं कोविड की वजह से कि कैसी सिचुएशन होती है, किस तरीके से इंसान जो है इफेक्ट होता है, लोग मरते हैं. तो कहते हैं कि 25,000 जो लोग थे वो उस प्लेग में जो थे वो उनकी डेथ हुई थी, और उसमें बहुत सारे सहाबा भी शामिल थे, और जो है उनमें हजरत अबू उबैदा भी उन्हीं में शामिल थे, जिस उनका प्लेग में ही उनकी डेथ हुई थी. तो उससे पहले एक इंसिडेंट ये हुआ था जिसको मैं इसलिए मेंशन करूंगी बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस कोविड एनवायरनमेंट, कि हजरत उमर जो है वो शाम की तरफ आ रहे. जब उनको पता चला कि शाम में ऐसे हालात हो गए हैं, तो वो शाम की तरफ गए कि उनको हुआ कि वहां पे ऐसी बीमारी फैली हुई है. जब वो बाहर थे तो हजरत अबू उबैदा जो है उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेने के लिए बाहर आए. तो जब वो बाहर पहुंचे तो हजरत उमर वहां पे जाके डबल माइंडेड हो गए कि मुझे जाना चाहिए अंदर के नहीं जाना चाहिए. उनको उस वक्त ख्याल आया कि आई डोंट नो व्हाट इज द रूलिंग अबाउट इट, कि अंदर के प्लेग है जिस उसमें. तो उन्होंने जब लोगों से कंसल्ट किया और सहाबा से, तो सहाबा ने कहा कि नहीं, वापस चले जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए. तो अबू उबैदा ने कहा आगे से कि क्या उमर, तुम अल्लाह ताला की कदर से के खिलाफ जाने की कोशिश करो, मतलब तुम अल्लाह ताला की कदर कोई पे यकीन नहीं रखते. तो उसी वक्त जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इलाके में बीमारी हो, मतलब प्लेग टाइप की चीज हो, तो उस इलाके में कि जो लोग हैं वो वहां से बाहर ना निकले, और जो लोग बाहर हैं वो वहां पर आए ना. तो उस वो रूलिंग को लेके जो फिर हजरत उमर जो है फिर वो वहां से वापस चले गए थे. फिर उसके बाद और हजरत उमर ने बहुत कोशिश की कि हजरत अबू उबैदा जो है वो उनके साथ चले, लेकिन हजरत अबू उबैदा जो है वो बहुत ज्यादा वो ज़ाहिर उन्होंने भी हदीस सुन ली थी, तो ज़ाहिर वो भी निकलना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने फिर हजरत उमर ने उनको एक ऐसा लेटर लिखा कि जैसे कि मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब खलीफा की तरफ से एक लेटर आया अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कि आप आए. तो हजरत अबू उबैदा ने उनको जवाब दिया कि मैं जानता हूँ अमीरुल मोमिनीन कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, आपको मुझसे कोई काम नहीं है, आप मुझे बचाना चाहते हैं, और मैं जो हूँ इस वक्त अल्लाह की रजा में राजी हूँ, मैं इधर से अभी नहीं निकलूंगा अपने लोगों को छोड़कर. फिर जो है उनकी जो है इसी प्लेग में जो है वो बहुत बीमार पड़े, और उसी में जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई. और जो है उस पे उन्होंने जो है आखिर में मतलब वहीं पे उनको फिर उनकी नमाज जनाजा और मतलब उनको वहीं पर शाम में ही जो है वहां पे उनको बैरी किया गया. और फिर कहते हैं कि जब हजरत उमर का वो अपने डेथ बेड पे थे, इसलिए हम जानते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, और वो एक दो दिन जो है वो अपनी इस वाली कैफियत में रहे थे कि वो ही वाज अबाउट टू डाई, और उनको कहा गया था कि आप किसी को अपॉइंट कर दें. तो उन्होंने कहा कि काश अगर इस वक्त अगर अबू उबैदा होते तो मैं उनको नॉमिनेट करके जाता, लेकिन क्योंकि अबू उबैदा नहीं है तो अब मैं शूरा बनाऊंगा. मतलब उन्होंने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई थी कि उसमें से किसी को चूज कर लेना. यानी ये कि हजरत उमर के नजर में उनका मकाम इतना हाई था कि अगर वो होते तो हजरत उमर जो है वो किसी और के बारे में कंसिडर भी नहीं करते. और ये वो सहाबी थे, अगर आप इनकी तमाम अगर हम देखें कि क्वालिटीज क्या थी हमें, जैसे कि कभी कभी हम जो है ना इन चीजों पे हमें लगता है कि जब तक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो तो हमें लगता है कि नहीं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये इनको क्यों दिया गया, 10 चोजन वंस में वो क्यों थे. तो उनका जो एक सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि उन्होंने अपने सामने जो है दीन को जो है ना वो सिर्फ हमेशा आगे रखा. उन्होंने अपनी जात को, अपने आप को कभी भी सामने नहीं रखा. उनके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो अल्लाह का दीन ही रहा. और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने हर सहाबी के उसको जानते थे, वो उनकी कुर्बानियों को जानते थे, वो उनकी सेक्रीफाइसेस को जानते थे, वो हर चीज जानते थे. फिर इसके बाद इस लिस्ट में हमारे लिए भी एक होप है ना कि जरूरी नहीं है कि जो फ्रंट पे नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही आगे जो बहुत ही फेमस है, कभी कभी तो कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन वो भी अल्लाह हर एक की हर अमल से वाकिफ है, और अल्लाह ताला किसी के भी अमल को जाया नहीं होने देते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ग्लैड टाइडिंग दी थी कि अपनी तरफ से दी थी, सायरा खुद तो नहीं दी थी, अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया होगा. तो यानी है कि अल्लाह ताला किसी के भी अमल को जाया नहीं करते. सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट अबू उबैदा.
फिर जो नेक्स्ट हमारे जो सहाबी हैं उनका नाम है जैद, क्या नाम है? जैद इब्ने सईद, ठीक है, जैद इब्ने सईद नाम है। मुझे नहीं पता कि जैद इब्ने सईद के नाम से आप लोग फेमिलियर हो, हालांकि हम इनको मेंशन कर चुके हैं। इनका एक बहुत ही मशहूर इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन जैद इब्ने सईद के बारे में बात करने से पहले हम उनके वालिद के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि कोई जानता है उनके बारे में। उनका नाम था जैद इब्ने अमर इब्ने नौफल, इब्ने नुफैल, सॉरी इब्ने नुफैल, जैद इब्ने अमर इब्ने नुफैल उनका नाम था। और उनको उनके बारे में कहा जाता है कि he is known as one man ummah. I don't know if anybody knows about this person who was known as one man ummah. किसी को पता है? जी आपने ही बताया था एक दर्स अपने एक लेक्चर में। वन मैन उम्मा ये क्या थे कि ये वो इंसान थे कि इन्होंने थ्रू आउट कुरैश में इतना ज्यादा आइडल वर्शिप थी, इतना ज्यादा सब कुछ था, लेकिन ये जो थे ये कभी भी खुश नहीं थे। जो कुरैश का जो वर्शिप जिस चीजों को वो करते थे, वो उनको कहते थे कि ये दीन इब्राहिम नहीं है, तुम गलत दीन पर हो, तुम दीन इब्राहिम पर नहीं हो, तुम ये सब गलत कर रहे हो। ये जो तुम्हें ये जो जानवरों को तुम बुतों के नाम पर जो तुम ज़िबा करते हो, ये भी सही नहीं है। और वो उनका मीट भी नहीं खाते थे। अरब जो है अपनी बेटियों को जाके जो दफन कर देते थे, तो वो उनसे उनकी बेटियां ले लेते थे जब उनको दफन करने में जा रहे होते थे, और कहते थे कि इनको मैं बड़ा करूंगा, तुम उनको दफन मत करो, मैं बड़ी होंगी तो तुमको दे दूंगा, और अगर उस वक्त भी तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इनकी शादियां करवा दूंगा। और उन्होंने बहुत सी लड़कियों के साथ इस तरीके से किया। एक लड़की को तो उसके बाप ने दफन भी कर दिया था, और जब उनको पता चला तो वो भागे भागे गए थे, और उन्होंने उसको जो है दोबारा से जो है वो कब्र में से निकाल के उसको उठाया था, और वो जिंदा हालत में उसको जो है लिया था। और ये तमाम इंसिडेंट्स जो है ज़ाहिर ये हजरत अस्मा के से भी उनकी बहुत सारी नरेशंस मिलती हैं इनके बारे में, कि जो हजरत आयशा की जो बहन थी, कि ये सारे इंसिडेंट्स ज़ाहिर होते हैं ना, वेल नोन लोग होते हैं कम्युनिटी में, चैरिटी वर्क कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो ये ही वॉज नोन फॉर दीज एक्ट्स। फिर जो है उनके जो और अपनी इन बिलीव्स की वजह से उनको जो है ना टॉर्चर भी किया जाता था, इसलिए कि वो कुरैश को मना करते थे कि ये तुम्हारे जो उनको पता नहीं था कि सही रिलीजन क्या है। वो ये जानते थे कि ये दीन इब्राहिम ही नहीं है, बस वो ये जानते थे, वो यही कहते थे कि ये दीन इब्राहिम ही नहीं है। तो उनको जो उनके चाचा जो थे वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। और उनके चाचा कौन थे? He was actually father of Umar bin Khattab. So he was a nephew of cousin of Umar bin Khattab, first cousin of Umar bin Khattab. तो जो है बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो यही कोशिश करते थे कि बस मुझे किसी तरीके से पता चल जाए। और उनके फ्रेंड सर्कल में एक और जो शामिल थे वो थे वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल के बारे में भी हमको पता है कि वो भी जो है उन्होंने भी कभी भी ये जो है आइडल वर्शिप नहीं की। वो भी जानते थे कि एक जो है नबी आने वाला है यहाँ पर, और वो उनका इंतजार कर रहे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी, तो हजरत खदीजा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ही लेके गई थी, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा एक जगह पे कोई कुछ इवेंट हो रहा था, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। ही वाज वेरी यंग देन, ही वाज इन 17-18 इयर्स ओल्ड। तो वहां पे कोई मीट सर्व किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से मना कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क्योंकि ये बुतों के नाम पे तुमने आपके अंदर भी एक फितरतन एक तौहीद थी, तो आपने कभी भी ना आइडल वर्शिप की और ना कभी ऐसी चीजें खाई। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वर्का तो फिर उस वक्त जो है जैद बिन नुफैल जो थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है, ये दीन इब्राहिम ही नहीं है। वो यही कहते थे। फिर कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया। वो सीरिया गए, वो जो है रैबाइस से मिले, वो जो है क्रिश्चियंस के पास गए, वो सबसे जाके बोलते थे, वो चाहते थे कि उनको पता चल जाए। कहते हैं कि सीरिया की ट्रैवल में उनको किसी ने ये कहा कि तुम्हारे मक्का में ही, क्योंकि अहले किताब जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मक्का में ही एक शख्स आने वाला है, तो वो वहीं पे आएगा, मतलब जो एक नबी जो है अल्लाह की तरफ से आने वाला है, तो वहीं पर आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया जब वो वापस आ रहे थे, लेकिन उनका ये डेफिनेट है कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 इयर्स पहले इंतकाल हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो वापस आ गए थे
और उन्होंने ये बात अपनी फैमिली में भी बताई थी। तो उनके जो बच्चे थे, उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने ये जैसे एक विश की थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रूर उस नबी से मुलाकात करें और मेरे बच्चे जो हैं वो सही दीन पर हों। तो जो हज़रत ज़ैद बिन सईद थे जिनके बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने जो अपना उनका जो ब्रॉटअप था वो सारा जो है एक ऐसे माहौल में हुआ था कि जहाँ पे कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। ये जो थे इनका जो है 5 इयर्स पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे मतलब नबूवत से 5 इयर्स पहले उनका इंतकाल हो गया था। फिर उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जब ज़ैद बिन सईद जब मुसलमान हो गए थे तो उन्होंने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरे वालिद का बिलीफ तो हमेशा सही था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि सही दीन क्या है। वो उसको ढूंढते रहे, लेकिन उस आपकी नबूवत से पहले उनकी मौत आ गई। तो मेरे वालिद के साथ क्या होगा, क्या मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकता हूँ? तो आपने कहा कि बिल्कुल कर सकते हो। और ज़ैद को मैंने जो है मेराज में मैंने उसको जन्नत में देखा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जब क़यामत के दिन तमाम लोग जो है अपनी अंबिया के साथ उठाए जाएंगे, उस वक्त ज़ैद जो होंगे वो अकेले उठेंगे एक उम्मत के तौर पे, इसलिए कि उन्होंने एक अकेले जो है इस चीज को फेस किया, लोगों के सामने बोलते रहे कि ये सही दीन नहीं है, जबकि वो जानते नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस चीज को उनकी इस चीज को कबूल कर लिया है, और ज़ाहिर है ये अमल जो है उनका एक्सेप्टेड हो गया है। तो ये नहीं है कि इंसान का जो कभी भी इंसान को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द ओनली वन। कभी कभी हम इसलिए भी डर जाते हैं कोई सही काम करने के लिए कि कोई तो नहीं कर रहा, आई विल बी द ऑड वन आउट। ही वॉज द ऑड वन आउट, बट उनका आप स्टेटस देखें। हम कभी ये भी सोच सकते हैं कि उनके बारे में तो पता चल गया, ठीक है, उनके बारे में हमें पता चल गया, लेकिन हमें हमारे बारे में तो फौरन जैसे ही हम मरेंगे हमें तो पता चल जाएगा ना। हमें इस बात की फिक्र तो नहीं होनी चाहिए कि लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा कि नहीं। एज लॉन्ग एज कि हमारा अंजाम सही है, वी शुड बी हैप्पी। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि वी शुड डू द राइट थिंग। ये नहीं देखें कि मेजॉरिटी क्या कर रही है या सब क्या कर रहे हैं, या मुझे कोई क्या बोलेगा, या लोग मुझसे मेरे बारे में अजीब बात करेंगे। वी हैव टू डू द राइट थिंग। अच्छा, फिर सईद इब्न ज़ैद के लिए कुछ लोग कहते थे कि ये अपने वालिद की दुआ है, क्योंकि इनके लिए इनके वालिद ने कहा था ना कि मैं नहीं तो मेरी औलाद जो है वो जरूर जो है उस नबी से मिले और उनके मतलब उनके दीन पर चले। सईद इब्न ज़ैद को जैसे ही पता चला, बिकॉज ही न्यू ऑल दैट, हिज फादर टोल्ड हिम कि ऐसा हो, मुझे बताया गया है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला, वो फौरन जाके उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो ईमान लाते हैं, ये बिल्कुल शुरू के मुसलमानों में से थे। ये भी हजरत अबू उबैदा भी कहते हैं कि ये वो वक्त था जब दारुल अरकम एक वो जगह थी ना जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग्स होती थी, एक सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, उससे भी पहले के मुसलमान हैं। और उनकी जो वाइफ थी, सईद इब्न ज़ैद की जो वाइफ थी, जब मैं शायद उनका नाम लूंगी तो आप लोगों को शायद याद आ जाएंगी कि ये कौन है। उनकी जो वाइफ थी वो हजरत फातिमा बिन खत्ताब थी, फातिमा बिन खत्ताब थी, जो कि हजरत उमर की बहन थी। ये जो थी, शी वॉज अ सेकेंड वुमन आफ्टर खदीजा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये भी फौरन, ये दोनों बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए थे। अब फिर उसके बाद हमें एक वेल नोन इंसिडेंट पता है इस कपल के बारे में, कि एक दिन जब हजरत उमर जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, और उनको किसी ने रास्ते में ये बात बताई कि पहले तुम अपने घर की तो खबर लो, तुम जो पहले तुम्हारे अपने घर में तो देखो कि क्या हो रहा है, फिर तुम दूसरों के बारे में जाके वो करना। तो उनको बताया गया कि उनकी बहन और बहनोई जो है वो इस्लाम ला चुके हैं। तो वो बड़े ही गुस्से में आए थे हजरत फातिमा के घर पे, और उन्होंने जो है फिर उनके घर में अंदर आके दोनों को मारा भी था। फिर जब उन्होंने अपनी बहन अपने ज़ैद बिन सईद को सईद बिन ज़ैद को खूब उनको टॉर्चर किया था, फिर अपनी बहन को भी मारा था। फिर जब उनकी बहन की जब उनका खून निकलने लगा था तो वो थोड़े से काम डाउन हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि ठीक है, मुझे दिखाओ कि क्या तुम पढ़ रहे थे। और उस पे जो है उनकी बहन ने कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कि तुम पाक नहीं हो। और फिर उनको कहा था कि तुम गुस्ल करो, और फिर वो गुस्ल करके आए थे। फिर उनको सूरह ताहा की आयत सुनाई गई थी या उन्होंने पढ़ी थी, और फिर वो मुसलमान हो गए थे। तो इस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि
इन्होंने जो मतलब ये इस चीज में, और ये कि ये देवर साबिकून में से थे ये लोग, कि बिल्कुल जो शुरू के लोग थे। और देखिए अस्साबिकून जो थे उस जमाने के भी और चाहे आज के जमाने के भी, जो जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी कोई सही काम होता है, जब जो इंसान उसमें सबसे पहले चला जाता है ना, उसका आज भी अस्साबिकून वाला लेवल होता है। तो इसमें इससे जो अस्साबिकून से हमें जो ये लेसन जो हमें मिलता है वो यही मिलता है कि कभी कभी हम क्या होते हैं, जब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अपील होती है, कोई भी चीज होती है, तो हम वेट करते हैं दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का रिस्पॉन्स क्या है, कौन कर रहा है, पहले हम ये देखते हैं। इसके बजाय अगर हम सबसे पहले कर लें तो इफ यू आर, तो फिर जितने लोग आपके पीछे आएंगे ना, उसका अजर भी फिर आपको मिल जाता है, उसमें आपका भी एक शेयर हो जाता है। तो इनका जो था, इस फैमिली का जो था, इसमें जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर था। और फिर जो है इनके बारे में जो है, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि वो जो है शामिल रहे तमाम उसमें, तमाम जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल ज़रूर रहे, लेकिन बदर की जो जंग थी, जंग बदर थी, उसमें वो शामिल नहीं हो सके थे। उसकी वजह ये थी कि उनको, और हमने जब तलहा बिन ज़ुबैर के बारे में बात की थी, तो तलहा बिन ज़ुबैर को और इनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इसी चीज के भेजा था कि दुश्मनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके के लिए भेजा था। और बाय द टाइम ये दोनों वापस आए थे तो जंग खत्म हो चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लेकिन बदरी सहाबा में शामिल किया था, इसलिए कि उस एक बहुत बड़ा स्टेटस था बदरी सहाबा में शामिल होना, तो ये उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो है फिर ये उसमें जो था बैत रिजवान जो हुई थी उसमें भी शामिल रहे थे, फतह मक्का के मौके पे भी शामिल थे, उन्होंने हज्जतुल विदा में भी शामिल थे, हर चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। लेकिन उनकी जो एक जो क्वालिटी जो पता चलती है, उससे पता चलती है कि द ऑल व्हाट ही लव थ्रू आउट हिज लाइफ was worship and to be an unknown soldier। वो चाहते नहीं थे कि किसी को भी पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। आपको पता है कि ये जो अशरा मुबशरा वाली हदीस है, इसके नरेटर कौन है? वन ऑफ द नरेटर इज जैद बिन सईद बिन जैद। लेकिन जो उन्होंने जो हदीस नरेट की है ना, उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने उसमें 9 लोगों के नाम बताए, उनको अपना नाम बताते हुए शर्म आई। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वो मतलब वो हमेशा ही वांटेड टू बी एन अननोन सोल्जर। लेकिन फिर यही हदीस जब आपको अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे लोगों से मिलती है तो आपको पता चलता है कि जो 10th, क्योंकि ये उन्होंने ये जरूर मेंशन किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 लोग जाएंगे, लेकिन 9th नेम के बाद उन्होंने 10th नेम नहीं बताया, लेकिन ये 10th नेम इनका खुद का था। तो थ्रू आउट इसके जो है उन्होंने ऐसी ही लाइफ गुजारी कि वो बैकग्राउंड में रह के काम करना पसंद करते थे, लेकिन ही यूज्ड टू डू हिज बेस्ट। हजरत उमर के ज़माने में जो थे, जब अशाम वाली जो इन्वेजन हुई थी जिसमें अबू उबैदा जो थे शामिल थे, इसमें ये भी शामिल थे। तो ये भी उस बैटल में थे। तो जिस दिन यरमूक की जो जंग यरमूक थी, तो उस दिन हजरत अबू उबैदा ने एक दिन उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो बड़ा सख्त नजर आ रहा है उसके मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हजरत सईद के बारे में आता है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आज शहादत मिल गई और अगर मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो मैं क्या कहूँ उनसे। तो हज़रत उबैदा ने उनसे कहा कि तुम उनसे कहना कि हमारी तरफ से सलाम कहना, और उनसे कहना कि जो है आपने जो भी, अल्लाह ताला ने हमसे जो भी वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा था ना कि तुम जो है बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है वो फतुहात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सारी कंट्रीज जो वो रोम और उस पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बारे में जो भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी पूरी हो रही थी। खैर, लेकिन ये कि हज़रत सईद की जो थी उसमें शहादत नहीं हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी, और उसके बाद जो है उनको जो है बसरा का गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन अब वो जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज से, इसलिए कि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि बस यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और मैं जो हूँ कुछ और नहीं कर रहा। मुसलमान जो है वो दूसरी जगहों पे जाके जंग कर रहे हैं और उनको तो बहुत ज्यादा अजर मिल रहा है। मतलब आप थिंकिंग पैटर्न में देखें कि हमारे कितना डिफरेंट था कि वो एक कंफर्टेबल उसमें कि उनको एक पोजीशन मिली हुई थी गवर्नर की, वो उस पर खुश नहीं थे। उनको था कि दूसरे मुसलमान तो जंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो उन्होंने वो सब छोड़ के फिर उन्होंने कहा, हजरत उमर को लेटर लिख दिया कि मैं
मैं ये इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हूँ, आप किसी और को गवर्नर चूज कर लें, मैं जो हूँ फ्रंट लाइन पे जाके जंग करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जाके जो है आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। उनकी जो डेथ हुई थी वो मदीना में हुई थी। उन्होंने अपनी जो जिंदगी के जो आखिरी दिन थे वो बहुत ही क्वाइट गुजारे, स्पेशली जब हजरत उस्मान के ज़माने में जो फितना हुआ था उसने उनको बहुत ज़्यादा अपसेट किया था। और जब हजरत उस्मान की शहादत हो गई थी उन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी क्वाइटली जो है मदीना के सबब्स में जो है उन्होंने गुजारी। और फिर उसी में एक दिन जो है उनका जो है मतलब उनकी जो है नेचुरल डेथ हो गई थी और फिर उधर ही उनको जो है वहाँ पे उनको दफन किया गया था। तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट सईद इब्न ज़ैद एज वेल। सो बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता, लेकिन वही पता चलता है जो हमें जो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद ये इसलिए बताया हमको, ज़रा और भी इतने सहाबा थे उनके लिए भी जन्नत की खुशखबरियाँ होंगी, उम्महातुल मोमिनीन थी और भी थे, हमें पता है साद बिन अबी सॉरी मुसअब बिन उमैर, और इसके अलावा हज़रत जाफ़र के लिए, हज़रत खदीजा के लिए और भी दूसरों लोगों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में, हज़रत हमज़ा के लिए, इसके अलावा तमाम शोहदा के लिए, जितने भी शोहदा थे ओहद के, बदर के, सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरियाँ दी। लेकिन फिर ऐसे लोगों को जो इतने जो अननोन लोग थे, जो अननोन सोल्जर्स थे, उनको इसलिए हमारे लिए मेंशन किया कि हम इससे होप लें। हमको हमेशा लगता है कि नहीं, कोई आप चीज़ जब तक कोई खास चीज़ नहीं करेंगे जब तक हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। आपका जो छोटा से छोटा भी अमल जो होता है वो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला उसको जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं। हम अगर देखें, आपको अबू उबैदा के उस पे तो आपको फिर भी मिलता है, लेकिन आपको हजरत सईद इब्न ज़ैद की लाइफ में हो सकता है या तो वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन आपको नजर ऐसा कुछ नहीं आता। यानी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने कि ये चीज हमारे सामने ना आए और हमें एक होप मिले कि हम भी इन चीजों के, ये जो नेमतें हैं, ये जो जन्नतें हैं, या जो चीजें हैं, ये हमारे लिए भी हो सकती हैं एज अ क्वाइट, एज अ बिल्कुल साइलेंट उसमें भी, कि चाहे कोई ना जानता हो कि मैंने क्या किया, लेकिन मेरा रब जरूर जानता है कि मैंने क्या किया। तो ये दिस वाज आवर सीरीज ऑफ अशरा मुबशरा एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 पे बात की। जो शुरू के जो 4 थे उनके बारे में हमें ज़ाहिर है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, बिकॉज दे वर ऑल्सो खलीफास, उनके ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें हुई और उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हुई। लेकिन उनके बाद वाले जो थे उसमें हमें थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जितना था अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस किया। रीज़न सिर्फ यही था कि हमें पता हो इन चीज़ों के बारे में, ताकि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अंबिया के बारे में जब बात करते हैं तो हमें होता है कि वो तो अल्लाह के नबी थे, उनके ऊपर तो एक स्पेशल लोग थे, ठीक है, वो बिल्कुल स्पेशल लोग थे, लेकिन ये जो लोग थे ये तो एक हमारे जैसे लोग थे। इन्होंने गलतियां भी की, इनसे मिस्टेक्स भी हुई, इन्होंने किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को जो है करेक्ट किया। ये एक्चुअली दे वर ऑल कन्वर्ट्स। इन्होंने, इनकी तो एक पास्ट था, इन सब का एक पास्ट था। इन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में चेंजेस लाए, किसको अपना रोल मॉडल बनाया, किस चीज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। और आज हम अपना हाल देखें कि हमारे सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, फिर कोई हमें दूसरा शख्स आके कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये कर भी लोगे तो कोई गुनाह वुनाह नहीं है, तो हम हिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि या अल्लाह क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या बिदअत करना भी ठीक है? नहीं ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कह दिया कि अल्लाह ने कह दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो फिर हमें वही काम करना है जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेनेशन है कुरान की, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उस कमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया, ये कह के मेरे बाद की जो 3 जनरेशन है दे आर बेस्ट। तो हम उन 3 जनरेशन से तो फिर भी कुछ जो उनके जो अमाल है, जिसको कहते हैं ना फजाइल अमाल वाली चीज, तो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जितनी भी इनोवेशंस हैं दे आर रॉन्ग। दे विल, हम जिसको कहते हैं ना कि अपनी रास्ते से हट जाना, तो उधर वो हमको अपने रास्ते से हटा देगी। तो प्लीज मत कंफ्यूज हो, ये शैतान का धोखा होता है कि जब आप किसी चीज पे जब आप हो जाते हो ना, आप स्टेडफास्ट हो जाते हो, तो वो आपको कोई ऐसा मैसेज भिजवा देता है, कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई ख्याल आपके दिमाग में डाल देता है कि आप शेकी हो जाते हो कि क्या मैं गलत हूँ,
क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या ये सही नहीं है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगेंगे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह ताला हमें हमारे दीन पे साबित कदम रखे। लेकिन ये है कि जो शैतान का जो ये वाला बहकावा है ना, कि वो जो हमें बार बार आके वो जब देखता है कि मेरी यहाँ से नहीं चल रही, तो वो कहता है ना, उसने तो कहा है कि मैं यहाँ से आऊंगा, वहां से आऊंगा, ऊपर से पीछे से हर जगह से आऊंगा। उसके अटैक्स की जब हम आते हैं तो हम अल्लाह ताला को याद करें और कहें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के अलावा हमको कोई शैतान के वसवसों से, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। और जो हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला जो कुरान और सही हदीस की जो भी हमारे पास नॉलेज हमें मिलती है, हम उसको सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको गुजारें, और यही शायद हमारे लिए सीधा रास्ता होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन